we are going to discuss the calculation of the square root of 4-digit number with short trick method, and this will be helpful for you for the calculation of the square roots within a second, within a 20 seconds, within a few seconds. So how can we use to calculate the square root? So first we write the numbers 1 to 9 and write the square of these numbers and write the digit of unit place 1 4 9 6 5 6 9 4 1. Here you are looking that 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36 and 7 square is 49, 8 square 64, 9 square 81. So we write the separately units digit 1 4 9 6 5 6 9 4 1. This will be the very helpful for the calculation of the square root using the short tricks or very short methods. So friends, you should keep this table in your mind for the calculation of square roots. So how we used to this trick for the calculation of the square root, we will giving few examples for elaboration of the method of solution. So come on the first question. We want to calculate the square root 2401. This is our first number and we are going to calculate the square root. So there are 4 digits. So friends, in the square root of 4 digits numbers, the digit will be 2 for the square roots. So we must have a 2 possible answers. 1. The friends, look which number of square have 1 as unit digit on its unit place, first and 9. So there will be answer 1 and 9. Now discard or eliminate the 0 1 and you have only 24. So in a 24, the number which is closest square to the 24, if we multiply 5 into 5, we get the 25. 25 is greater than the 24. So we should not take 25, but we should consider less than the 24. So for the number of square 4 into 4, 16. 16 is less than 24. So the number will be 4 and 4. So friends, here we get 2 possible squares root. One is a 41, other is a 49. But how can we select correct one of them? इनमें से हमें correct कैसे पता चलेगा इसमें correct कौन सा है? तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर देखिए 4 है, 4 से ज़्यादा एक नंबर लीजिए, 4 से ज़्यादा 5 होता है consecutive number. 4 into 5 we get the 20 and compare 20 with the 24, which is greater? 24 is greater than 24. Therefore, if this number is greater than this number, then the digit at the unit place will be larger number. Means 9 will be at the place of unit digit, unit place. So our answer will be 49. So friends, this is the method, short trick by which we capable to calculate the square root of 4 digit number. So our square root of 2401 will be 49. And for the elaboration in the next example 5929, there are total number of digits are the 4. So square root digit will be 2 and we have of 2 possible answers here 29. Look the square root of the square of 2 digit number which will have 9 as its unit place. So here we will able to see 3 and 7. There are 2 numbers, 3 is a 9 and 7 is a 49. So the place at the unit is 9. So 2 possible answers will be, one will be 3 and next will be 7. So you eliminate 29. Now we
कंसंट्रेट ऑन 59। अगर हम यहाँ पे 59 पे देखते हैं, 59 में क्या है, तो 59 नंबर के क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सी होगी। अगर हम बात करते हैं 7 तो 7 7 जा 49 होगा, लेकिन अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 8 जा 64 होगा, और 64 जो है वो 59 से ज़्यादा है। तो हम जो है 59 से कम का नंबर चूज करेंगे, ज़्यादा का नहीं। तो 7 7 जा 49, हमारा आंसर यहाँ पे 7। तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स मिले, एक 73 और एक 77 मिला। तो अब हमें यहाँ पे जज करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे 7 के बाद जो नंबर आती है 8, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 8, 7 8 जा 56, हमें 56 मिला। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 59 है, 59 से 56 छोटा है। तो 59 इज ग्रेटर देन 56, सो the square root will be the number which have larger digit at units place, so our answer will be 77। इसलिए हमारा आंसर जो है 77 हो जाएगा। Now elaboration in the third examples for understanding the method or the working rule to calculate the square root of 4 digit using the short trick methods। 4 digits, 2 possible numbers in the square root. One is at the unit place, so the number which will have a square number as one its unit place। टेबल में देखिए आप, एक का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। और दूसरा जो है आप यहाँ पे 9 मिल रहा है, 9 9 81 और यूनिट के प्लेस पे 1 होता है। हमारे पास तो पॉसिबल नंबर्स होंगी, एक होगा 1 और एक हो 9, मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 डिजिट्स होंगी। अब यहाँ पे 62 की बात आती है। 62 जो है यहाँ पर 64 से कम है। 64 द स्क्वायर ऑफ 8, सो वी कंसीडर लेस देन द 62, द नंबर विल बी 7 7 7 या 49 79। This is now the two possible answers, 71 and 79. So how will we check? Our answer is which are our answer? 79. Consider 7 के बाद का नंबर 8, 7 × 8 we get 7 8 जा 56 and 62 is greater than 56. So our answer will be larger number 79। हमारा यहाँ पे इसका आंसर 79 हो गया। ये हमारा आंसर है, यहाँ पर आंसर ये है और यहाँ पे ये है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं 3136। इसका कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करेंगे, पूरे नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे आप, और यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट में 2 अंक होंगे और हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर्स होंगे 36। तो हम यहाँ पे नंबर देखेंगे टेबल से कि ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स मिलेंगी, एक ये नंबर मिल रही है और दूसरी जो है आपको एक ये मिल रही है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 और इनके यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स होंगी वो होंगी, एक 4 होगा और एक 6 होगा। अब यहाँ पे आइए 31 की बात करते हैं। आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो छोड़ दीजिए, आप उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप देखेंगे 31, तो 31 का स्क्वायर 31 के आसपास कोई नंबर है जिसका स्क्वायर इसके आसपास है, तो हमें दिखता है कि 5 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसके आसपास है। तो लेकिन अगर हम 6 की बात करते हैं 36 हो जाता है, जो कि 31 से जाता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम हमेशा इस नंबर से कम वाले स्क्वायर को ही लेंगे जो उसके पास होगा। तो 5 5 या 25, तो हमारे पास जो पॉसिबल आंसर होंगे 5 और 5। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक 54 हो गया, एक 56 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे जज कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही कौन सा है? तो 5 के बाद का जस्ट नंबर कंसीडर करेंगे। तो 5 के बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 होता है, तो 5 × 6 करेंगे, हमें 30 मिलेगा। और 30 की वैल्यू जो है 31 से कम है, तो ये नंबर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए आपका आंसर जो है ये 56 हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर रूट 3136 का 56 होगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें इस नंबर की वैल्यू जो यहाँ पे मिल रही है, अगर इसकी वैल्यू इस वाले से ज़्यादा है तो आंसर ऊपर वाला होगा, लोवेस्ट का होगा।
तो फ्रेंड्स जो है ये 4 डिजिट्स नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का पैटर्न था, शॉर्ट ट्रिक थी। और अगर आप इसको 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आप 10 सेकंड के अंदर जो है इन 4 अंक की इन संख्याओं का स्क्वायर रूट फाइंड करने में सक्षम हो जाएंगे। और आपका ये जो मेथड है एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारा टाइम बचा देगा और आपके स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए आप पूरा देख रहे होंगे फिर 5 केवल एक बार आता है, 5 is 1। तो अगर कोई नंबर ऐसी है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का पॉसिबल आंसर केवल एक ही होगा। हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ उसको भी बता देते हैं। जैसे इस नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5, 6, 25, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर्स होंगे वो भी आपके 2 होंगे, 2 डिजिट के होंगे। 25 है तो आप यहाँ पे देखिए कि ऐसे कौन सी नंबर है जिसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 5 आता है। तो आप केवल देखेगा 5, 25 केवल एक ही नंबर है, बाकी और कोई नहीं है। तो हमारे पास इसमें जो है 2 ना के बजाय केवल एक आंसर होगा। तो हमारे पास 5 हो गया। और यहाँ पे फिर ये देखो 56 है, तो 56 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या कौन सी नंबर है जो इससे कम है, तो वो आपको दिखेगी 77 का 49, तो 7 ये हो गया। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर हो गया 75। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें एक ही आंसर मिलेगा और वो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 अंक है तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें एक ही आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको जो है 4 अंक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का एक बेहतरीन और अच्छा तरीका बताया, जो मुझे आशा है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा और आप कम से कम अत्यंत लघु समय में इस ट्रिक का यूज़ करके उपयोग करके इसको लगा सकते हैं और आपको आपके एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम आपको वहाँ पर कुछ एक ऐसे प्रश्नों और उन सब के बारे में दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।